پاکستان کی سعودی عرب کو پی آئی اے اور ایئرپورٹس کی نجکاری میں جوائنٹ وینچر کی پیشکش۔ اسلام آباد میں 2 5 اسٹار ہوٹلز کی نجکاری میں جوائنٹ وینچر اور مٹیاری ٹرانسمیشن لائن اور فرسٹ ویمن بینک کی بھی آفر۔ سعودی وزیر خارجہ کی قیادت میں پاکستان کے دورے پر آئے وفد کی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی سے ملاقات۔ آرمی چیف کی بھی خصوصی شرکت۔ کمیٹی کی سعودی وفد کو سرمایہ کاری منصوبوں پر بریفنگ۔ سعودی وفد نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے قیام کو خوشائند قرار دیا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل کی سعودی وفد کے ہمراہ صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا پاکستان سعودی عرب سے تعلقات اقتصادی شراکت داری میں بدلنا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات میں کہا سعودی عرب نے مشکل وقت میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا۔ سعودی وفد کا دورہ پاک سعودی اسٹریٹجک اور تجارتی شراکت داری کے نئے دور کا آغاز ہے۔ سعودی عرب سے تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو پاکستان کے دورے کی دعوت کا پیغام بھی دیا۔ فیض آباد دھرنا کمیشن رپورٹ اب تک سپریم کورٹ میں جمع نہ ہو سکی۔ ذرائع کے مطابق انکوائری کمیشن نے عید سے قبل رپورٹ اٹارنی جنرل آفس کو بھیجی، جس پر اٹارنی جنرل آفس نے اعتراضات اٹھا دیے اور انکوائری رپورٹ کمیشن کو واپس بھجوا دی۔ فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض امین کو کلین چٹ دے دی۔ کمیشن میں سابق آئی ایس آئی چیف فیض امین نے بیان دیا تھا کہ حکومت نے 22 نومبر 2017 کو وزیر اعظم کی سربراہی میں دھرنا ختم کرنے کی ذمہ داری دی تھی۔ معاہدے پر دستخط کی اجازت آئی ایس آئی چیف اور آرمی چیف نے دی تھی۔ تحریک لبیک کے مالی معاملات کی تحقیقات نہیں کی کیونکہ وہ ہمارے مینڈیٹ میں نہیں تھا۔ ایران نے اسرائیل کے بحری جہاز پر موجود 2 پاکستانیوں کو واپسی کی اجازت دے دی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق ایران نے مطلع کیا کہ پاکستانی عملہ وطن واپس جانے کے لیے آزاد ہے۔ جہاز کے کپتان کا اختیار ہے کہ وہ جب بھی اپنے عملے کو اجازت دے وہ جہاز سے اتر جائیں۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے گزشتہ روز دونوں پاکستانیوں کی رہائی کی یقین دہانی کرائی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال مری کا دورہ، علاج کی سہولیات کا جائزہ، اسپتال عملے سے مسائل بھی دریافت کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مریضوں کی خیریت دریافت کی۔ رہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہربانو قریشی کہتی ہے کہ سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ کو نماز عید سے روکا گیا۔ شاہ محمود قریشی اور بانی پی ٹی آئی نے باجماعت عید کی نماز ادا نہیں کی۔ دونوں کو اپنے سیل میں رکھا گیا۔ پہلے ملاقات میں ڈیسک ہوتا تھا لیکن اب درمیان میں شیشہ لگا دیا گیا ہے۔ ملت ایکسپریس میں تشدد کے بعد پراسرار طور پر ہلاک ہونے والی مریم کے لواحقین مقدمے کے اندراج کے لیے پریشان۔ مقدمہ اب تک درج نہیں کیا جا سکا۔ ڈی ایس پی جڑاوالا متاثرہ فیملی کے گھر پہنچ گئے۔ متاثرہ خاندان سے تعزیت اور تعاون کی یقین دہانی۔ لاہور اور پشاور میں روٹی کی قیمت کم نہ ہو سکی۔ پشاور میں شہریوں کو 16 روپے میں روٹی کہیں نہیں مل رہی۔ 120 گرام روٹی 20 روپے، 240 گرام روٹی 40 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ ضلع انتظامیہ نے 100 گرام روٹی کی قیمت 15 روپے اور 200 گرام روٹی 30 روپے پر فروخت کرنے کی ہدایت کی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب میں کہیں کہیں 16 روپے میں روٹی دستیاب۔ لاہور کی ضلع انتظامیہ کی 3000 سے زائد مقامات کی چیکنگ، 592 روٹی اور نان پوائنٹس پر جرمانے، 79 افراد زیر حراست۔ پشاور میں 3 روز کی بارش کے بعد متاثرہ علاقوں سے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی۔ شہری اپنی مدد آپ کے تحت بارش کا پانی نکالنے پر مجبور۔ ضلع ٹانک میں موسلادھار بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال، رابطہ سڑکیں زیر آب آ گئیں، پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ دریائے کابل میں نوشیرہ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ ہرنائی کا سیلابی صورتحال کے باعث دوسرے روز بھی ملک بھر سے زمینی رابطہ منقطع۔
बुशा बीबी की बनीगाला से अरियाला जेल मुंतकली की दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वकला की अदम पेशी पर बरहम। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के साथ सियासत खेल रहे हैं, मजाक बनाया हुआ है। कभी आज सुन रहे हैं कि इस केस का फैसला करेंगे तो फिर नहीं आए। ये वो भी नहीं चाहते कि घर से जेल चली जाएं। उन्होंने जो रिलीफ मांगा है पता नहीं वो चाहते भी हैं या नहीं। स्टेट काउंसिल से मुकालबा करते हुए कहा कि आप भी ठीक काम नहीं कर रहे। बुशा बीबी की दरखास्त खारिज होने के बाद उनके वकील अदालत पहुंच गए, केस की बहाली की दरखास्त दायर कर दी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कच्चे के इलाकों में हालात में बेहतरी का दावा। कहा कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का टारगेटेड ऑपरेशन जारी है, हालात में बेहतरी आई है। 15 दिन में घूच की कश्मोर शिकारपुर से 13 मुग़वी बाजियाब करवाए। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कराची में जराइम में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफराद के मुलव्वस होने को बड़ा मसला करार दिया। कहा शहर में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफराद मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस हैं। शर्जील मेमन ने स्ट्रीट क्राइम में जान खोने वाले अफराद के लवाहिकीन के लिए किफ़ालत या मुआवजा देने की हिमायत की। कहा इस मामले पर हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा। कराची के दरख्शा थाने में गिरफ्तार मुलजिम मुईस की हलाकत कैसे हुई, DIG वेस्ट की सरबराही में तहकीकात का आगाज हो गया। सरकार की मुद्दइयत में मुकदमा भी साहिल थाने में दर्ज। SHO दरख्शा और ASI नामजद। FIR के मुताबिक SHO दरख्शा और ASI ने भत्ताखोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम को तफ्तीशी पुलिस के हवाले नहीं किया। गुज़श्ता रोज़ 3:20 पर मुलजिम मुईस की हवालात में मौत की इत्तला मिली। पुलिस हुकाम के मुताबिक SSP साउथ और आला अफसरान वाक़े से लाइल्म रहे। SP सदर ने भी वाक़े को मशकूक करार दिया। पासपोर्ट इन्होंने सबमिट कर लिया ओरिजिनल, वो इन्होंने कहा कि प्रोटेक्टर हम लेंगे। इन्होंने कहा कि वीज़ा, टिकट और जो आपकी ओरिजिनल डिग्री है आप हमसे 15 अप्रैल को कलेक्ट कर लें। तो जब हम इनके ऑफिस आए तो इनका ऑफिस बंद पड़ा। आपकी फ़्लाइट है 17 अप्रैल को दुबई की ना, तो अभी 17 फिर ये हमारी कॉल्स नहीं उठा रहे थे, 20 में ईद आ गई। तो अभी जब हम कांटेक्ट किए आज सुबह आए तो पता चला कि ये फ्रॉड हो गया। किसी के 3.5 लाख अमाउंट था, किसी का 2,60,000 रुपये था। तो और बहुत सारे लोगों की डिग्रीज और जो है ना वो पासपोर्ट जमा थे वेरिफिकेशन के लिए। बैरून मुल्क जाकर रोज़ी कमाने और ज़िंदगी बनाने के ख्वाहिशमंद कराची के नौजवान मुबैना फ्रॉड का शिकार हो गए। मुतासर अफराद का कहना है कि डिफेंस फेज़ 8 में निजी कंपनी ने सऊदी अरब दुबई में मुलाजमत के लिए रकम ली। ईद के बाद कंपनी के दफ्तर पहुंचे तो ताला लगा हुआ था। कंपनी का मालिक 2 करोड़ रुपए से ज़ायद लेकर फरार हो गया। 80 से ज़ायद मुतासरा नौजवानों ने कानूनी कार्रवाई के लिए मुतल्लिका थाने से रुजू कर लिया। तफ्तीश जारी। पेशावर हाई कोर्ट में मुकदमात की तफसील की फराहमी के लिए PGI रहनुमा मियां असलम इकबाल की दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी और सूबाई हुकूमत, NAB, FIA और दीगर से 7 दिन में जवाब तलब। डिप्टी अटार्नी जनरल ने कहा दरख्वास्त गुजार का ताल्लुक लाहौर से है, ये लाहौर का केस है। जस्टिस शकील अहमद ने कहा वो तफसील मांग रहे हैं, आप बता दें कि उनके खिलाफ कितने केसेस हैं, इसमें छुपाने वाली क्या बात है। PGI को कराची में जलसे की इजाज़त न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हुकूमत, डिप्टी कमिश्नर कराची और दीगर से जवाब तलब। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा जलसे की इजाज़त देनी है तो दें, दरख्वास्त मुस्तरद करनी है तो मुस्तरद कर दें, वजूहात के साथ जवाब जमा कराएं। 5000 बंदे के साथ जलसा कर सकते हैं, ये कोई भीख मांगना नहीं कि किसी से मांग रहे हैं और वो नहीं दे रहे। हमने पहले भी PGI को कराची में जलसे की इजाज़त दी थी, क्या नहीं करने दिया था। PTI वकील ने बताया PTI के खिलाफ टैकडाउन चल रहा था, जलसा नहीं करने दिया। अगर इंसाफ नहीं कर सकते, सच्चाई सामने नहीं ला सकते तो अदालतें बंद कर दें। सिंध हाई कोर्ट में लापता शहरी की वालिदा की दुहाइयां। अदालत ने कहा हमारी हमदर्दी आपके साथ है, आपके बेटे की बाजियाबी की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। समाअत के बाद व्हील चेयर पर आने वाली खातून बेहोश हो गई। अदालत में तफ्तीशी ऑफिसर पेश नहीं हुआ। सरकारी वकील ने बताया कि वो एक मीटिंग के लिए इस्लामाबाद गए हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सरकार से तनख्वाह लेकर सिर्फ तफ्तीशी ऑफिसर को बचाने के लिए सब लगे हुए हैं। जब जबरी गुमशुदगी का तयन हो चुका तो बताया जाए कि बंदा किस इदारे के पास है।
सेक्रेटरी दाखिला सिंध और DIG इन्वेस्टिगेशन तलब, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला से भी रिपोर्ट तलब। चार लापता अफराद के लवाहिकीन का मस्तूंग में कौमी शाहराह पर धरना दूसरे रोज भी जारी। कोयटा कराची शाहराह शमसाबाद क्रॉस ब्लॉक गाड़ियां और मुसाफिर फंस गए। खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग और मरीज मुसाफिरों को मुश्किलात। मुजाहिरीन का कहना है कि लापता अफराद की बाजियाबी तक धरना जारी रहेगा। मार्च 2024 में भारत से सालाना बुनियादों पर दरामदाद 48% बढ़ी। इस साल मार्च में भारत से दरामदाद का हजम $2 करोड़ 73 लाख रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता साल मार्च में भारत से दरामदाद $1 करोड़ 85 लाख की थी। इस साल जनवरी में और गुज़श्ता साल फरवरी में भी भारत से दरामदाद बढ़ी थी। पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में भारत के साथ तिजारत मुअत्तल कर दी थी। बाद में भारत से तिजारत में नरमी की गई थी। भारत से जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की तिजारत करने की इजाज़त दी गई है। क्या वफाकी काबीना ने वज़रा और मुशीरों के लिए 12 अरब रुपए से ज़ायद की नई लग्जरी गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दी है? जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर फैली इस खबर की तरदीद कर दी। जियो फैक्ट चेक के राबता करने पर सेक्रेटरी वफाकी काबीना कामरान अली अफजल ने कहा, ऐसी कोई चीज़ नहीं क्योंकि इस फंड के उनके पास होते हैं। वफाकी वज़ीर बराए समंदर पार पाकिस्तानी और तरक्की इंसानी वसाइल चौधरी सालिक हुसैन और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी वज़रा के लिए 12 अरब रुपए की लग्जरी गाड़ियों की खरीदारी के दावे को मुस्तरद कर दिया। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राब्ता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। सजाए मौत देने पर पाकिस्तानी अवाम की राय तकसीम। 45% ने सजाए मौत के कानून की मुकम्मल हिमायत की। कहा, संगीन जराइम में मुलव्विस मुजरिमों को सजाए मौत देना दुरुस्त अमल है। 39% की मुखालफत। कहा, किसी भी सूरत में किसी की जान लेना गलत है। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 11% पाकिस्तानियों ने सजाए मौत देने पर दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया, ना खुलकर हिमायत की और ना ही मुखालफत। ननकाना साहब में बैसाखी मेले की तकरीबात में सिख यात्रियों की मजहबी रसूमात की अदायगी। सिख यात्रियों का इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। बैसाखी मेले की तकरीबात 17 अप्रैल तक जारी रहेगी। गाजा पट्टी में इसराइल की कार्रवाइयाँ जारी। रफा में घर पर इसराइली हमले में बच्चे समेत 4 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में मस्जिद पर इसराइली हमले में फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा के इलाके बैत हानून में इसराइली फ़ौजी गाड़ियों ने एक स्कूल का घेराव कर लिया। स्कूल के अतराफ गोलियों और धमाकों की आवाज़ें। स्कूल में सैकड़ों फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। नाबलस में तसादुम के दौरान इसराइली आबादकारों ने 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। ईरान को नुकसान पहुंचाना है मगर जंग नहीं करनी। ईरानी हमले के बाद इसराइली जंगी काबीना में फैसला। इसराइली जंगी काबीना का इजलास आज फिर होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा, मशरिक़ वुस्ता कशीदगी में इजाफा नहीं देखना चाहते, सिफारती राबते कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते, लेकिन इसराइल की इंतकामी कार्रवाइयों का फौरी और पहले से ज़्यादा सख्त जवाब देंगे। ईरान की एटमी तंजीबात पर मुमकिन इसराइली हमले पर आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह फ़िक्रमंद। सवाल के जवाब में राफेल ग्रोसी ने कहा, ईरानी हुकूमत ने हमारे मुआयनाकारों को बताया कि जौहरी तंसीबात सिक्योरिटी के पेश नज़र बंद रहेंगी। ये तंसीबात आज खोलने का कहा गया है। हमारे मुआयनाकार मौजूद हैं और वहाँ काम कर रहे हैं। यकीनन हम हमेशा इंतहाई तहम्मुल का मुतालबा करते हैं। इससे पहले इसराइली आर्मी चीफ ने ईरानी हमले पर कहा था कि ईरान को अपने इक़दामात का खमियाजा भुगतना पड़ेगा।
اور سونے کی عالمی اور مقامی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ. مقامی مارکیٹ میں 1 تولہ سونا 2400 روپے مہنگا 2,49,700 روپے کا ہو گیا. عالمی بازار میں قیمت $20 اضافے سے $2,371 فی اونس ہو گئی.